We were seeing that we are living in these last days. हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग अभी अंत के दिनों में जी रहे हैं. In Ephesians chapter 5. एफिशियो चैप्टर 5 में जाएंगे. इफिशियो चैप्टर 5 verse 5, verse 15 and 16. चैप्टर 5 वाक्य 15 और 16. Therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making most of the time because the days are evil. Verse 5, verse 4. Sorry, 15 and 16. तो चैप्टर 5 वाक्य 15 और 16. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. So we have been exhorted to make the most of the time or redeem the time because the days are evil. तो यहाँ पे हमें प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम लोग जो अवसर हैं उसको बहुमूल्य समझे क्योंकि जो दिन है वो बुरे हैं. And we must see how evil these days are. तो हमें देखना है कि ये आज के दिन कितने बुरे हैं. Many times people promise that good days are going to come. कितने बार लोग ऐसे वादा करते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं. Our country is going to improve, our society is going to improve, a lot of things are going to improve. हमारे जो देश है, हमारा जो सोसाइटी है, सब अच्छा होने वाला, बेहतर होने वाला है. But the Bible says things are going to come bad to us. लेकिन बाइबल कहता है कि जो चीज़ें हैं वो बुरे से और बदतर होते जाएंगे. And the spirit of the Antichrist will be made manifest. और मसीह को विरोध करने वाला जो आत्मा है वो उत्पन्न होगा. The last days are like going to be the days of Noah. तो अंत के जो दिन है वो नूह के दिन के समान होंगे. And the days of Lot. और लॉट के दिन के समान होंगे. There will be so much of lawlessness. बहुत सारा अधार्मिकता होगा. There will be such a lot of immorality. बहुत सारी अश्लीलता होगी. And immorality will be so common. और अश्लीलता बहुत ही सामान्य बात हो जाएगी. We see that right now. और हम लोग वो आजकल देखते हैं. 50 years back it was very difficult to become immoral. 50 साल पहले इस देश में अश्लील बनना बहुत ही थोड़ा मुश्किल था. If you wanted to see a bad movie, अगर तुम्हें खराब पिक्चर देखना था, you had to go and hiding and see. तो तुम्हें जाके छिप कर देखना पड़ता If you था. want to see dirty pictures, अगर तुम्हें अश्लील तस्वीरें देखनी थी, you had to hide it. तो तुम्हें उसको छुपाना पड़ता था. But now everything is open. लेकिन अभी सब कुछ खुलेआम होता है. Everything is on the hand. सब कुछ हाथों में ही दिखता है. Click the button, you see. एक बटन क्लिक करो तुम्हें दिख जाएगा. Young people, young children are exposed to all the evil. युवक और बच्चे भी आजकल ये सारी दुष्टता का सामना कर रहे हैं. And we live in a very, very evil world. और हम लोग बहुत ही दुष्ट, बहुत ही खराब दुनिया में जी रहे हैं. And we can get so contaminated very quickly. और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हम लोग इससे खुद पीड़ित हो सकते हैं. And since the Apostle Paul is writing to believers in Ephesians. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो विश्वासी है एफिशियो में उनको लिख रहा है. And Ephesians church was a very spiritual church. जो एफिशियो में जो कलीसिया था काफी आत्मिक कलीसिया था. And in the last days, we also can get tempted. और अंत के दिनों में हम लोग भी लुभावने में पड़ सकते हैं. We also can fall into all sorts of sins. हम लोग भी हर एक तरीके के पाप में गिर सकते हैं. And because these days are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं. That's why the Bible says that we must redeem the time. इसलिए बाइबल कहता है कि ये जो अवसर है इसको बहुमूल्य समझो. The devil is controlling the people of this world by his spirit. शैतान जो है इस दुनिया के लोगों के ऊपर अपने आत्मा के जरिए नियंत्रण रखता है. We were controlled by the devil. एक समय पे हम भी उसके नियंत्रण के नीचे थे. We see in the previous chapter, Ephesians chapter 2. चैप्टर 2 में जाएंगे एफिशियो के, हम लोग देखते हैं वहाँ पे चैप्टर 2. You were verse 1 to 3. वाक्य 1 से 3. You were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Among them you too also formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and by nature children of wrath, even as the rest. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के सामने समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. The Apostle Paul says we are all under the control of the spirit of the world, that is the devil, that is the spirit that is working in the children of disobedience. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहा है कि एक समय था जब हम सभी लोग उस आत्मा के नियंत्रण में थे जो शैतान का आत्मा है, वो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है. You and I both under the control of the evil spirit of the devil. तुम और मैं एक समय पे
दुष्ट आत्मा या शैतान की आत्मा के नियंत्रण के नीचे हुआ करते He थे। controls all the people of this world. वो ये सारे दुनिया के लोगों के ऊपर नियंत्रण रखता है। He gives them all the good things वो उनको दुनिया के सारी अच्छी चीजें देता है and allows them to live in sin. और उनको अनुमति देता है कि वो पाप में जिए And they live in disobedience. और वो लोग ना आज्ञा मानने वाले We जीवन were जीते all हैं। living in disobedience, और हम सभी एक समय पे आज्ञा नहीं मानते थे। indulging in all sorts of sins, हर एक तरीके के पाप में हम लोग घिरते थे, keeping hatred in our heart, मन में नफरत रखते थे, anger, गुस्सा, bitterness, कड़वापन, all sexual immorality. सारी अश्लीलता। And the devil allowed us to enjoy these things. और शैतान अनुमति देता था कि हम लोग ये सारी चीजों का आनंद उठाएं। You know, the devil gives us all, allows us, points at all the good things of this world to enjoy. क्या तुम जानते हो कि शैतान तुम्हें दुनिया की सारी अच्छी चीजों की ओर दिखाता है, तुम्हें बोलता है कि तुम जाके उसका आनंद ले लो। Good food, good clothes, and everything else in this world. And then along with that, all sin. अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, दुनिया की सारी अच्छी चीजें और उनके साथ साथ पाप की चीजों को भी तुम्हें दिखाता है। There's a lot of pleasure in this world. There's also a lot of sin. दुनिया में काफी सारे अच्छी चीजें हैं जिसका हम लोग आनंद उठा सकते हैं और कई सारे बुरे चीज भी हैं, पाप चीजें भी हैं जिनका हम लोग आनंद उठा सकते You हैं। and I have experienced it. और ये सारी चीजों का अनुभव हम सभी ने किया है। Even after becoming believers, he still tries to tempt us. विश्वासी होने के बावजूद भी शैतान कई बार हमें लुभाता है। In Hebrews it says, Moses refused to be called the son of the Pharaoh, refused the pleasures of sin. That is for a short time. इब्रानियों में लिखा है मूसा जो था उसने ठुकरा दिया वो स्थान जो उसको मिलता था फ़ारो का बेटा होने के नाते, और वो सारी आनंद या वो सारे ऐशो आराम जो उसको दुनिया में मिलते थे क्योंकि वो थोड़े समय के लिए थे। Why is sin so attractive? तो ये पाप जो है ये इतनी आकर्षित चीज क्यों है? Because there's a pleasure in it. क्योंकि उसमें एक आनंद है, All sexual pleasure, सारा काम वासना का आनंद, eating a lot of food, अच्छा खाना खाने का आनंद, and keeping bitterness in our heart and anger in our heart, या मन में कड़वापन रखना या गुस्सा रखना, gives a pleasure. उसमें भी एक आनंद मिलता है। To do our own will gives a lot of pleasure. खुद की इच्छा करने में एक आनंद मिलता है The devil says you indulge in it. और शैतान बोलता है कि तुम उसमें और पढ़ो, Ultimately you will come to me. और क्योंकि एक दिन फिर तुम मेरे पास ही आओगे। I also indulged in all these things. मैं भी ये सब चीजों में पढ़ चुका हूँ। Because of that, God's anger was against me. उसकी वजह से परमेश्वर का जो क्रोध है वो मेरे खिलाफ हो गया He था, wanted to be proud. क्योंकि शैतान एक समय पे घमंडी था। He wanted to have a position. वो स्वर्ग में एक स्थान हासिल करना चाहता So था, the devil also instigates us. और उसी तरीके से शैतान हमें भी उकसाता है। You're not an ordinary person. You are somebody special. वो कहता है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक खास व्यक्ति हो, You're a special brother or a special sister. तुम एक बहुत ही खास भाई या खास बहन हो। As they say in our Hindi, you know, the devil chadaus us. जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि शैतान हमें चढ़ाता है, And we also think that we are very important. और हम लोग भी सोचने लगते हैं कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। That's how he came to Eve. उसी तरीके से वो हवा के पास भी आया था। You don't think God is trying to, you're also great, Eve. Don't try to think that you have to just listen to God. You also do what you like. तो वो हवा को कहने लगा कि तुम ये मत समझो हवा कि तुम कोई कम व्यक्ति हो, तुम भी बहुत महान स्त्री हो, जरूरी नहीं कि तुम्हें हर चीज में परमेश्वर की बात सुननी है। As somebody says, all the devil's good apples have worms in it. जैसे किसने कहा है कि शैतान के जितने भी अच्छे फल हैं उन सभी में कीड़े होते हैं, And once you eat it, you suffer for it. और एक बार अगर तुम वो फल खा लेते हो फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है। Sometimes we go to the roadside food and like to eat bel puri and ganne ka ras. कई बार हम रोड साइड पे हमें भेलपुरी या गन्ने का रस खाना अच्छा लगता है, Nice smell comes and we like to eat it. अच्छा सुगंध आता है तो हमें मन करता है कि हम भी जाके खाएं। But what to do? फिर क्या करना है? There is a danger that you may get typhoid or jaundice or loose motions. तो एक खतरा होता है कि तुम्हें जॉन्डिस या टाइफॉइड या जुलाब हो जाए, There is no cleanliness in that roadside food. क्योंकि रास्ते पे जो खाना मिलता है जरूरी नहीं है कि वो साफ सुथरा हो। For 5-10 minutes, very tasty. 5-10 मिनट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, But by the evening, loose motion will start. लेकिन शाम होते ही जुलाब शुरू हो जाता है, And for 1 week, you'll suffer like anything. और फिर एक हफ्ते तक तुम बहुत परेशान हो जाते हो। Just for tasting a small thing, you got severe, you felt sick like anything. 5-10 मिनट के स्वाद के लिए तुम एक हफ्ते फिर बीमार पड़ते हो। Everybody is doing that. हाँ, सब लोग करते हैं, God says, when you do it, you'll get it. लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर तुम करोगे तो तुम भी उसका परिणाम भुगतोगे। Sin, there is always pleasure in sin. पाप में हमेशा एक आनंद होता है, But it only lasts for a short time. लेकिन वो बस थोड़े समय के लिए ही रुकता है। After that, the Bible says the wages of sin is death. और बाइबल कहता है कि पाप का जो पगार है वो मृत्यु है।
And that's how the devil tempts all the people of this world. और इसी तरीके से शैतान दुनिया के सारे लोगों को लुभाता है। They say, come on, we have better and better pleasures. वो बोलता है कि और अच्छे मौज करने की चीजें हैं। Ultimately, they waste their lives and they die. और लोग इसी में अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं और एक दिन मर जाते They हैं। die in their sin. वो अपने पाप में ही मर जाते They हैं। don't take sin seriously. वो लोग पाप को कभी भी गंभीर रीति से नहीं लेते, Even though there is no joy in their own heart. इसके बावजूद कि उनके मन में बिल्कुल सच्ची आनंद नहीं है। They try to work up joy. वो लोग कोशिश करते हैं कि एक नकली आनंद वो लोग They उत्पन्न try to करें। put artificial smiles. वो लोग नकली मुस्कुराहट मुंह में रखते हैं, No, but the inner happiness and contentment is not there. लेकिन असलियत में उनके मन के अंदर एक संतुष्टि नहीं होती। But the person who follows Jesus and who has forsaken sin has true joy and peace. लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु का पीछा करता है सारी चीजों को छोड़कर, उसके मन में सच्ची शांति और आनंद होती है। We who were once controlled by the evil spirit now should be controlled by whom? By the Holy Spirit. एक व्यक्ति जो एक समय पे शैतान की आत्मा के नियंत्रण में होता था, अभी उसको कौन से आत्मा के नियंत्रण में रहना है? पवित्र आत्मा के। Our life should be controlled every day by the Holy Spirit. हमारा जो जीवन है उसके ऊपर हर रोज पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। It's written there in this verse, ये लिखा है ये वचन में, verse 18, chapter 5. चैप्टर 5 वाक्य 18। इफिसियों, Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। For those of us who know, those who drink wine, तो जो लोग हैं यहाँ पे जो पीते हैं, पीते थे, and those who drink outside in this world, और जो दुनिया के जो लोग हैं जो बाहर पीते हैं, it gives a great pleasure. तो उसमें वो लोग को एक आनंद मिलता है, It gives kick. उसमें से एक जोश आता है। Whenever wine is mentioned, any banquet, all the men will smile. Whenever wine is Wine. mentioned, तो अगर कोई जगह पे जाए वहाँ पे उनको मालूम पड़ा कि दाखरस मिल रहा है, दारू मिल रहा है, तो सारे पुरुष बहुत खुश हो जाते हैं। They don't bother about other food and all. They say wine should be there, then liquor is there, then our heart is very happy. वो लोग को फिर बाकी कोई खाने पीने की पड़ी नहीं होती, अगर दाखरस या दारू मिल जाता है तो उसी से वो लोग खुश हो जाते हैं। But it says after that they behave very badly. लेकिन उसके बाद उनका बर्ताव बहुत ही खराब हो जाता है। Bible says do not get drunk with wine. तो बाइबल कहता है कि तुम्हें दाखरस के द्वारा नशे में नहीं पड़ना है। The good pleasures of this world are like wine. तो दुनिया में जो भी मौज मस्ती की चीजें हैं वो एक दाखरस के समान है। Fame, name, riches, people get drunk with it. मशहूरता, धन संपत्ति, लोग इसी के नशे में हो जाते हैं। Unbelievers get drunk with it. और विश्वासी भी इन चीजों के नशे में पड़ जाते हैं। But the Lord says, I'll fill you with the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भरूंगा। The Bible says you have to be filled with the Holy Spirit every day. और बाइबल कहता है कि तुम्हें हर रोज पवित्र आत्मा से भरे रहना है। And when you're filled with the Holy Spirit, then what will happen? और अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो क्या होगा? How will your life become? फिर तुम्हारा जीवन कैसे होगा? Will become like Jesus Christ. तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु के जीवन के जैसे the बनेगा। happiest life that can ever be lived. सबसे खुशी वाला जीवन जो कोई व्यक्ति जी सकता है। We have experienced it. We have experienced still more. हमने इसका अनुभव किया है और भी हमें करना है। And how will my life be? और फिर कैसा मेरा जीवन होगा? That says verse 19. यहाँ पे वाक्य 19 में लिखा है, I will speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in my heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। And give thanks to all things in the name of our Lord Jesus Christ. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। And I'll be subject to one another in the fear of Christ. और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। So how do you know when you're filled with the Holy Spirit? तो कैसे तुम्हें पता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हो? Some people go to the meeting and keep on jumping and falling down and laughing and doing all sort of antics, you know. कुछ लोग मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे कूदते हैं, गिरते हैं, हंसते हैं, वही सब भी चीज करते रहते हैं। Some people start speaking tongues also. We have some different languages. कुछ लोग अलग अलग अन्य भाषाओं में बात करते हैं। But the main thing is our life will change, and our life, instead of grumbling and complaining, I'll give thanksgiving and praise to God. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मेरा जीवन बदले और मैं परमेश्वर की ओर धन्यवाद देने लगूं, इसके बजाय कि कुड़कुड़ करूं। I'll be so thankful that God loves me. और मैं फिर परमेश्वर की ओर धन्यवाद दूंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है। And inside my heart there'll be a song of thankfulness. और मेरे मन में एक धन्यवाद देने वाला गीत रहेगा। Easy to start a song. बहुत ही आसान रहेगा कि मैं एक गाना गाने शुरू करूं,
क्योंकि मेरे मन में वो गाना है। We sing that song, in my heart there rings a melody. हम लोग वो गीत गाते हैं कि मेरे मन में वो गीत आता है, There should always be a tune in my life. तो मेरे मन में हमेशा एक धुन होना चाहिए। A song, we may not be able to sing much, we may not be able to play music, but there always be a singing in my heart. हो सकता है कि मैं अपने होठों से ठीक से गा नहीं सकूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक धुन, एक गाना होना चाहिए। That is the brother and sister who has been filled with the Holy Spirit. तो यही वो भाई और बहन है जो पवित्र आत्मा से भरा गया है, And they're always there to encourage other people. और वो लोग हमेशा रहते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। It says, that you'll be filled with the Holy Spirit, and then you'll be singing and make melody in your heart, and then you give thanks to God for everything. यहाँ पे लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे और अपने मन में परमेश्वर की ओर गीत गाओगे और हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। In everything I'll give thanks. हर एक चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, Because I say my God is in control. क्योंकि मैं बोलूंगा कि मेरा परमेश्वर नियंत्रण में है। When you're not filled with the Holy Spirit, जब भी मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा you'll रहूंगा always grumble and murmur. तो मैं हमेशा शिकायत करूंगा, कुड़कुड़ This करूंगा, is what comes out of all the children of the world. क्योंकि दुनिया में या संसार के जितने भी बच्चे हैं उनके मुंह से यही चीज बाहर आती है। What does Philippians chapter 2 say? फिलिपियो चैप्टर 2 क्या कहता You है? must shine as lights in this world. तुम्हें इस दुनिया में ज्योति के समान चमकना है। In the middle of a crooked and a perverse nation. एक टेढ़ा और बहुत ही गंदा पीढ़ी के बीच तुम्हें इस तरीके से चमकना है। We live in our offices, among our relatives who are crooked and perverse. हम लोग जीते हैं हमारे दफ्तर में, हमारे रिश्तेदारों के बीच, ऐसे लोगों के बीच जो टेढ़े हैं और दुष्ट हैं। And in the midst of them, there are few people who shine as lights here and there. तो उनके बीच परमेश्वर चाहता है कि कुछ लोग ज्योति के समान चमके। And how do they shine as lights? और कैसे हम लोग चमकेंगे? They are always thankful. वो लोग हमेशा धन्यवाद देते हैं। They will not murmur and complain. वो लोग कुड़कुड़ाएंगे नहीं। Don't think this is a life when you go to heaven. ये मत सोचो कि ये जीवन तुम प्राप्त करोगे स्वर्ग में जाने के बाद This ही। we have to practice it. We have to experience it, write it over here. इसका अनुभव, इसका अभ्यास हमें यहीं पे करना है। In your homes, तुम्हारे घर में, in my office, दफ्तर में, in the church. कलीसिया में। Lord, I will always thank you because you control, you love me and you take care of my life. परमेश्वर, मैं हमेशा तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखता When है। a person is filled with the Holy Spirit, is always spirit of thanksgiving. एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वो हमेशा धन्यवाद देता रहता है, Otherwise, that is not the Holy Spirit. वरना वो पवित्र आत्मा नहीं है। When your Holy Spirit comes into our life, always be thankfulness. Grumbling will go away. जब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो फिर तुम हमेशा धन्यवाद दोगे, शिकायत और कुड़कुड़ाहट निकल जाती है। I have to be filled with the Holy Spirit every day. और इसलिए मुझे हर रोज पवित्र आत्मा से भरे रहना है। And what are the conditions by being filled with the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या चीज की Go to जरूरत God है? and repent from your sins. सबसे पहले जाके अपने पापों से पछताप करो And believe that God is going to give you the Holy Spirit. और विश्वास करो कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। Repentance and faith. पछताप और विश्वास, Same conditions for taking water baptism. वही सारे शर्त हैं जो तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेने के पहले Last भी time लागू करना we पड़ता है। saw that God wants to give us the Holy Spirit eager to give us the Holy Spirit to all His children. परमेश्वर हमेशा उत्साहित होता है कि वो अपने बच्चों को पवित्र आत्मा दे। So long we have been filled, we have been controlled by the evil spirit. कितने लंबे समय से हम लोग शैतान के या दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में रह चुके हैं। As believers, as unbelievers, पहले विश्वासी के समान, even after becoming believers, और फिर विश्वासी होने के बाद भी it's wasted such a lot of time. कितना समय हमने व्यर्थ किया है। Said, Lord, I don't want to waste any time. हमें बोलना है कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि मैं और समय बर्बाद करूं। Lord, I want to give thanks to you and praise you and have to have a humble heart. प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि तू मुझे एक नम्र मन दे। It says you can be subject to one another, the fear of Christ. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। We have a humble heart. तो एक नम्र मन The रखो। Holy Spirit is a very humble person. पवित्र आत्मा बहुत ही नम्र व्यक्ति है। Of the three persons of the Godhead, परमेश्वर जो Father, Son, and the Holy Spirit, जो पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा है, the Holy Spirit is a very humble and meek spirit. तो पवित्र आत्मा जो है बहुत ही नम्र व्यक्ति है। It always goes in the background. He goes in the background. वो हमेशा पीछे हट जाता है। We always remember the Father and the Son. हम लोग हमेशा पिता परमेश्वर और उनके पुत्र प्रभु यीशु को याद करते हैं। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, He's got a humble spirit. लेकिन वो एक बहुत ही नम्र व्यक्ति है He encourages us so much, और हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं, but He never takes any credit. और वो कभी भी लेकिन कोई चीज की महिमा नहीं लेते। So that Jesus said, if anything you tell against the Son of Man, you are forgiven, but you tell anything in the Holy Spirit, you will not be forgiven. और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कुछ कहते हो तुम माफ किए जाओगे, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हो तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। People who are filled with the Holy Spirit are very humble. जो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं वो लोग नम्र बन जाते हैं। They become humble and they have think low thoughts about themselves. वो लोग नम्र हो जाते हैं और खुद के बारे में वो लोग बहुत ही छोटे सोच विचार रखते As हैं। we sang that song, "Tu bade, main gatu." जैसे हम वो गीत गाते हैं कि तू बढ़े हम घटे,
we must have we will want to become subject to one another in the fear of Christ. तो हम लोग फिर परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन होने की खोज करेंगे। In the church there are so many people who all want to become leaders. कलीसिया में कितने सारे लोग हैं जो सभी लोग अगुवा बनना चाहते हैं। Everybody wants to become pastor. सभी लोगों को पास्टर बनना है। Everybody wants to become secretary or president, everything. सभी लोगों को सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या ऐसा कोई बड़ा स्थान हासिल करना They है। want to show everybody they are somebody. वो लोग सभी को दिखाना है कि वो लोग भी कोई हैं। That's completely contrary to the spirit of Christ. वो बिल्कुल प्रभु यीशु की आत्मा के विरोध है। The past we have all people in this world live like that. Believers also live like that. दुनिया के लोग तो ऐसे जीते ही और अब कई बार विश्वासी लोग भी इस तरीके से जीते So हैं। now the Lord said you have to redeem the time. लेकिन परमेश्वर भी कहते हैं कि तुम्हें इस समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। Every day God gives us to live for Jesus. हर रोज परमेश्वर देता है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के लिए जी सकें। When we are conscious of that, say, Lord, you have given me today. Today is the 4th of September. Lord, I want to live for you. जब भी हम लोग को इस बात का एहसास होता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु आज 4 सितंबर है, मैं आज के दिन तेरे लिए जीना चाहता हूँ। Lord, all my conscious hours, the Holy Spirit, when you are filled with the Holy Spirit, Holy Spirit lead us and guide us to all the truth. जो भी मेरे जागते हुए समय है उसमें पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा सारी सच्चाई में। He'll tell us what to do. वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। We know in 24 hours, most of the time is spent in doing so many, like 1/3 of the time is spending in sleeping. तो हम लोग सभी जानते हैं कि 24 घंटे में से 1/3 समय तो सोने में जाता है। And most of the time we spend in work about 8 to 10 hours. और तकरीबन 8 से 10 घंटे दफ्तर में बीत जाता So है। we really have 3 or 4 hours of free time every day. तो फिर सारा काम होने के बाद मुश्किल से 3 या 4 घंटे मिलते हैं जो खाली समय होता है। And that is the time we have to spend in reverent preparation, living in fellowship with the Lord, and actively interacting with God. तो वो खाली समय फिर हमें सही तरीके से बिताना है ताकि हम लोग परमेश्वर के चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, उसके बाद समय बिताएं। And these few hours will determine what type of life we are going to live and what type of person we are going to be. और ये जो चंद घंटे हैं इनके ऊपर निर्भर रहेगा कि तुम किस तरीके के आत्मिक व्यक्ति बनोगे आगे जाके। The Lord says, do not be unwise, but be wise. और परमेश्वर कहता है कि अबुद्धिमान मत रहो, बुद्धिमान बनो। And the Holy Spirit wants us to go about, and God will make us a blessing to people around us. और परमेश्वर कहता है कि फिर इस तरीके से वो तुम्हें आगे लेके जाएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों की और एक आशीष बनाएगा। Jesus said, Jesus will be following Jesus who went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. Acts chapter 10 verse 38, I think, sir. और प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वाक्य 38 में जाएंगे। प्रेरितों के काम चैप्टर 10 Acts chapter 10 verse 38. प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वाक्य 38। Very good verse for all of us to think. You know Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। See, when God fills us with the Holy Spirit, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, everything that you do will be good. जो कुछ भी तुम करते हो वो अच्छा होता है। Everything. हर एक चीज, You'll be good words. तुम अच्छे शब्द इस्तेमाल करोगे, You'll be doing good things in your office. तुम्हारे दफ्तर में सही चीज करोगे, Everything in your home you'll be doing good things. तुम्हारे घर में तुम सही चीज The करोगे, church you'll be doing good तुम things. कलीसिया में सही चीज That's why करोगे। we have to be filled with the Holy Spirit. क्यों? इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। Just like Jesus, you'll go out doing good. प्रभु यीशु के समान तुम भी सब जगह पे भलाई करते जाओगे। Before that, what we were doing without the Holy Spirit? उसके पहले बिना पवित्र आत्मा के हम लोग So doing what we were doing, क्या करते थे हम लोग भले के बजाय? you're doing bad. हम लोग गलत चीज करते Being थे। bad at home, घर में बुरा चीज करते थे, badly in the church, कलीसिया में बुरा चीज करते थे, badly in the office. दफ्तर में बुरा चीज करते थे। By nature, extremely bad, like the devil. स्वभाव ही हम लोग एकदम बुरे थे जैसे शैतान खुद है। We were oppressed by the devil. हम लोग शैतान से पीड़ित थे The devil was controlling us. और शैतान हमारे ऊपर नियंत्रण रखता था Keep anger, कि तुम अपने मन में गुस्सा रखो, jealous, ईर्ष्या रखो, lust, हवस रखो। all the things we are controlled. तो ये सारे चीजों के नियंत्रण में हम थे, Like the people of this world. इस दुनिया के लोगों के Even जैसे। after becoming believers, when we are not yielded to the Holy Spirit, we behave like that. विश्वासी होने के बावजूद अगर हम लोग पवित्र आत्मा की ओर समर्पित नहीं रहेंगे तब भी हम लोग ये सब चीजों में पड़ सकते हैं। That's why most believers behave in a very carnal and evil way. इसलिए कई बार विश्वासी भी बहुत ही अविश्वासी या अपने शरीर में बर्ताव करते हैं। They say they are believers, but they believe like unbelievers. वो लोग बोलते हैं कि वो विश्वासी हैं लेकिन वो लोग जीते हैं अविश्वासियों के Very जैसे। easy to live like unbelievers. बहुत ही आसान है अविश्वासी जैसे जीना। We can get
we can believe in the Lord and get water baptized. After that, we can live as we like. We're not filled with the Holy Spirit. We'll behave like unbelievers. परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं, पानी का बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो अविश्वासी के जैसे जी सकते हैं And we'll be oppressed by the devil. और फिर शैतान से हम लोग सताए जाएंगे. What does being oppressed? Being harassed. सताए जाने का मतलब क्या है? परेशान किए जाना. When you're filled with the Holy Spirit, लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, God will use us to deliver people who are oppressed by the devil. फिर परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा दूसरों को छुड़ाने के लिए जो शैतान से पीड़ित हैं. Because God is with him. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ थे. God, Jesus Christ is with me. The Holy Spirit is with me. He is greater than the devil. प्रभु यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वे शैतान से ऊंचे हैं, उनसे ज्यादा महान है. How can the devil flee from me? कैसे शैतान मुझसे दूर भागेगा? Is he afraid of me? क्या वो मुझसे डरता है? The devil is a very powerful person. शैतान बहुत ही शक्तिशाली है. But I am filled with the Holy Spirit. लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ. The Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है. Devil is only a fallen angel. शैतान बस एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है. That's why the devil doesn't want us to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ. When you're genuinely filled with the Holy Spirit, you will resist the devil will flee. जब तुम सच में पवित्र आत्मा से भर जाओगे और तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुमसे दूर भागेगा. When you pray for people in your home and this the devil oppressing them will go away. अगर तुम अपने घर में प्रार्थना करते हो तो शैतान जो लोग तुम्हारे घर में जिनको सता रहा है उनसे दूर भागेगा. You can pray for your father, your mother, your children. What happens? The oppression of the devil will go away. तुमने माता पिता बच्चों के लिए या परिवार के लिए प्रार्थना करोगे तो शैतान का जो शक्ति है उनके ऊपर वो निकल जाती है. God has given us tremendous power. तो परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत शक्ति दी है. And sometimes we don't realize it. और कई बार इसका एहसास हमें नहीं होता. Say, Lord, for that I have to be filled with the Holy Spirit and be humble and pure in heart. लेकिन ये शक्ति के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भरे रहना पड़ता है और उसके लिए मुझे मन में नम्र होना पड़ता है. And how can we become pure in heart? और कैसे मैं मन में एकदम शुद्ध हो सकता हूँ? Just confess your sins. अपने पापों को कबूलो. Ask God forgiveness. परमेश्वर से माफी मांगो. And repent. पश्चाताप करो. Become pure. और तुम शुद्ध हो जाओगे. God will fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा. You get the power of God. और परमेश्वर की शक्ति तुम्हें मिलेगी. God's presence comes in you. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे अंदर आती है. Wherever you go, you become a blessing. फिर तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पे एक आशीष का सूत्र बनोगे. It's as simple as that. इतनी आसान सी बात है. Brothers and sisters, we have to experience it. भाई और बहनों, इस चीज को हमें अनुभव करना है. And when we pray, God hears. और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है. And God will definitely change the situation. और जरूर फिर परमेश्वर वो परिस्थिति को बदलता है. For the glory of God. परमेश्वर के महिमा के लिए. It will take time, but God will say, Lord, I'm filled with the Spirit. Lord, I believe in your name that this will happen. भले समय लगे लेकिन हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे पवित्र आत्मा से भरा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये होगा और ये होगा. We have to pray for the salvation of our loved ones. हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो प्रिय लोग हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है. Salvation of people around us. उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उनके उद्धारों के लिए प्रार्थना करना है जो हमारे इर्द गिर्द हैं. And unconsciously we will be finding that we'll be a blessing. और हम लोग अनजाने में भी ये देखेंगे कि हम लोग दूसरों की ओर एक आशीष का सूत्र बन रहे हैं. And I like what Brother Rajkumar says. मुझे अच्छा लगता है वो चीज जो भाई राजकुमार कहते हैं. When we filled with the Holy Spirit, when we see the wonderful miracles and the wonders that God is doing through us, we will not even know about it. और वो कहते हैं कि जब हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो कई बार परमेश्वर अलग अलग चमत्कार और अलग अलग कार्य करता है हमारे इर्द गिर्द, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता. Many times people have come and said, you said these things that really touched me. I said, when did I tell you all these things? कई बार लोग आके मुझसे कहते हैं कि तुमने ये सारी चीजें बोला जो मुझे बहुत ही छू गया, और मैं कहता हूँ कि मैंने जब चीज कब बोला. It's the Holy Spirit speaking through us. We are not even aware of it. वो पवित्र आत्मा हमारे जरिए बोल रहा है, हमें तो पता भी नहीं होता कि हम ऐसे बोल रहे हैं. And the good things that we do, we not keep a record of it. और जो कुछ भी अच्छे चीज हम लोग करते हैं उसका हम लोग हिसाब नहीं रखेंगे. Jesus said in the last days when he comes, he said he'll divide the people into sheep and to goats. बाइबल कहता है कि अंत के दिन में जब प्रभु यीशु आएंगे वो लोगों को दो भाग में बांटेंगे, एक है मेमने, दूसरे हैं बकरे. He'll tell the sheep, I was hungry and you fed me. I was in prison, you visited me, and when I was sick, you came and visited me, and did so many things. तो मेमनों की ओर वो देख के बोलेंगे कि जब मैं बीमार था तुम आके मुझे मिले, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं कैद में था वहाँ पे भी आके तुम मुझे मिले. And they will say, Lord, when did we do all these things? तो उस समय जो ये लोग हैं वो लोग कहेंगे कि प्रभु ये सब चीजें हमने कभी किया था. We don't even remember. उन्हें तो याद भी नहीं होगा. Because whatever they were doing for the Lord. They were not even conscious. क्योंकि वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे वो लोग प्रभु के लिए कर रहे थे, उसके बारे में उनको पता भी नहीं था. There are so many good things we do, we should not be conscious about it. उसी तरीके से कई बार हम लोग बहुत सारे अच्छे चीज करते हैं लेकिन वो सारी चीजों को हमारे ध्यान में हमें नहीं रखना चाहिए. People in this world do a lot of good things. दुनिया में जो लोग हैं बहुत सारे अच्छी चीज करते हैं. They are known as benefactors.
उन लोग को अच्छे काम करने वाले बोलते हैं। This person has donated 10 lakh rupees and they make a big plaque and put it over there. Everybody should remember me and everybody should remember me. तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ने 10 लाख रुपए दान दिया है, तो उसके वो लोग बड़ा बोर्ड बनाते हैं और लगा देते हैं ताकि सब लोग देख पाएं। They keep a big record of that. और वो लोग बड़ा रिकॉर्ड या हिसाब रखते हैं। Jesus said, when you do some good things, please see that it be absolutely top secret. तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जब कभी भी तुम कोई अच्छा काम करते हो तो ध्यान रखो कि उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चले। Some of your good works people will see. कुछ तुम्हारे अच्छे काम लोग देख लेंगे, But most of the good things that you see should be unseen and unknown only to the Lord. लेकिन ज्यादातर जो तुम अच्छे काम करोगे वो सिर्फ परमेश्वर के सामने होना चाहिए, दूसरों को नहीं पता चलना चाहिए। And then you'll get your reward from heaven. तभी तुम्हें फिर स्वर्ग से उसका इनाम मिलेगा। Many times I see many strangers in the train. कई बार अनजानों को देखता हूँ ट्रेन में, And sometimes they come and wish me and say, thank you. And I said, who are you? और वो लोग आके मेरे से हाथ मिलाते हैं और मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो। He said, don't you remember, I was a patient, you treated me, I was so sick and I said, well, I don't remember at all. तो वो लोग मुझसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारे अस्पताल में एक मरीज था और तुमने मेरा इलाज किया था, अब मैं ठीक हूँ। तो ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं है। That person is so grateful. तो वो जो व्यक्ति है वो एकदम धन्यवाद देता है That he is recovered and I was so kind to him, I did some good to him. कि वो ठीक हो गया है और मैंने उसके और कोई अच्छा चीज किया है। It must be such a habit for us to be filled with the Holy Spirit that all that we do and say will be good. तो हमें पवित्र आत्मा से इस रीति से भरे रहना है कि एक आदत पड़ जाए हमारे लिए कि जो कुछ भी हम लोग अच्छा करते हैं उसका ध्यान हमें रहे नहीं। My thoughts will be good. तो मेरा जो सोच विचार है वो भी अच्छा रहे। I'll only be thinking good thoughts. मैं हमेशा सही चीज या अच्छे चीज के बारे में सोचता रहूंगा। Because I'm thinking of God, I'll be a blessing everywhere. अगर मैं हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचता रहूंगा तो हर एक जगह पे मैं एक आशीष का सूत्र See, बनूंगा। God is good to the bad as to the good people. तो परमेश्वर जो है वो हर एक व्यक्ति की ओर भला है, भले वो अच्छा रहे या बुरा रहे। He gives everybody good health, rain, sunshine, food, water, riches. Everybody just gives free. वो सभी लोगों को मुफ्त में बारिश, खाना, अच्छा स्वास्थ्य, सब चीज मुफ्त में देता है। Jesus is also like that. प्रभु यीशु भी ऐसे ही थे। He healed all the people. वो हर एक व्यक्तियों को So चंगाई many देते people थे। he did good. कितने सारे लोगों की ओर उन्होंने अच्छा किया, Whether they appreciated him or did not appreciate him. भले उन्होंने फिर उसके लिए धन्यवाद दिया या नहीं दिया। 10 lepers came to him. 10 आए थे लोग, बीमार लोग आए थे उसके पास, कुष्ठ रोग. कुष्ठ रोग। Only one person gave thanks. तो उसमें से 10 के 10 ठीक हो गए थे, लेकिन एक ही व्यक्ति वापस आया धन्यवाद देने के। Jesus knew the 9 people are going to be ungrateful and go back. तो प्रभु यीशु जानते थे कि बाकी के 9 लोग आके धन्यवाद नहीं देने वाले हैं, Anyway, do good to all. लेकिन फिर भी उन्होंने सभी 10 लोगों की ओर अच्छा किया। Do, as the Bible says, as you have opportunity, do good to all men. तो बाइबल कहता है कि जब कभी भी तुम्हें मौका मिले हर एक व्यक्ति की ओर अच्छा करो, Especially those of the household of faith. खासकर उन लोगों की ओर जो तुम्हारे विश्वास में है। Where's that verse? Galatians chapter गलेशियो चैप्टर में, 5. गलेशियो चैप्टर 5 में जाएंगे। 5 or 6. गलेशियो चैप्टर 5 So Galatians chapter 6, गलेशियो चैप्टर 6 verse 9 and 10. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all men, especially to those who have the household of faith. गलेशियो चैप्टर 6 वाक्य 9 और 10, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Sometimes we feel, Lord, I'm trying to do good and helping, but nobody is appreciating it. कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर मैं कितना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहा। Do not lose heart, brothers and sisters. तो अपना मन मत हारो भाई और बहनों, God sees everything. परमेश्वर हर एक चीज को देख रहा है। The smallest thing that we do, God notes it. छोटे से छोटी चीज जो तुम करते हो परमेश्वर उसका ध्यान रखता है, You will definitely reap. और जरूर फिर तुम उसका फसल काटोगे। If you do anything for the Lord will always keep a record of it. अगर तुम कोई भी चीज परमेश्वर के लिए करते हो परमेश्वर उसका हिसाब रखता He है। is no man's debtor. वो कोई भी व्यक्ति की ओर उधार नहीं रखता। If you do good to other people, they always say thank you and they'll say, Lord, I want to appreciate you, I'll help you back. अगर तुम कोई दूसरे व्यक्ति की ओर कोई अच्छा चीज करते हो तो वो तुम्हारे ओर धन्यवाद देता है और बोलता है कि वो भी तुम्हारे ओर कोई अच्छी चीज करने की कोशिश God करेगा। is infinitely more kind and good. तो परमेश्वर कोई भी व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा अधिक अच्छा है। So what we should do good to all men. तो हमें क्या करना है? हर एक व्यक्ति की ओर अच्छा करना है, भला करना है। All people whom we meet. हर एक व्यक्ति, हर एक वो लोग जिनसे हम मिलते हैं, All those who come across our way. हर एक लोग जो हमारे सामने आते हैं। But he says, especially to those who are the household of faith. लेकिन खासकर उन लोगों की ओर जो हमारे विश्वासी भाई हैं। We have a household of, what is the household of faith?
तो विश्वासी भाइयों का मतलब क्या है? The church. कलीसिया। Brothers and sisters. भाई और बहन। Jesus said, who are my brothers and sisters? प्रभु यीशु ने कहा कि कौन है मेरे भाई और बहन? The ones who hear the word of God and do it. जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उसको लागू करते हैं। He pointed out to the disciples. तो अपने चेलों की ओर उसने दिखाया। Where were his own mother, brothers and sisters? उसके खुद के जो शारीरिक भाई और माँ वो कहाँ पे थे? They were outside. वो लोग बाहर थे। But Jesus said, the true people who will be there with me for all eternity are the true disciples of Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि वो मेरे परिवार वाले रहेंगे, वो मेरे भाई रहेंगे जो मेरे साथ अनंत काल के जीवन में रहेंगे, और वो है मेरे चेले। Because they are the true church, we are the members, they are the true family. क्योंकि वो लोग कलीसिया के एक भाग हैं और इसलिए हमारे सच्चे परिवार हैं। The apostle Paul said about Timothy, Timothy has a kindred spirit. प्रेरित पौलुस कहता है कि टिमोथी जो है उसके अंदर एक बहुत ही kindred मीनिंग फैमिली, राइट? Family. तो उसके अंदर एक बहुत ही पारिवारिक आत्मा है। See, anybody belongs to a certain family जैसे एक व्यक्ति अगर कोई एक परिवार का हिस्सा हो or a certain community, we suddenly feel very close to them. तो या कोई एक अगर दो लोग एक जात के हो या एक बड़े परिवार का हिस्सा हो तो उनके बीच एक अपनापन होता है। For your cousin or your auntie, if they are, you feel little affection. मतलब कोई तुम्हारा भाई हो या चाचा चाची हो तो एक अपनापन होता है। But the apostle Paul said, now we should have a kindred spirits towards one another. तो प्रेरित पौलुस कहता है कि यही अपनापन वाली आत्मा हमें एक दूसरे के बीच रखना है कलीसिया में। We may belong to different communities, हो सकता है कि तुम अलग अलग जात के हो, but we are related by the blood of Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम सभी जुड़े हैं, That's why we break bread. और इसलिए हम लोग वो रोटी तोड़ते When हैं। we are born again, we come into the family of God. हम लोग जब भी नया जन्म पाते हैं तो परमेश्वर के परिवार में आ जाते हैं। That is the closest family. ये सबसे नजदीकी परिवार We है, should have a special concern for one another. और एक दूसरे की ओर एक खास हमें ये रखना है, स्वभाव रखना है। We should have pray for one another एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है and should try to help one another. और एक दूसरे की मदद करनी है, And that is doing good. और इसी को कहते हैं अच्छा करना। If we pray for one another, God says God will bless you. अगर तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हें भी आशीषित Don't करेगा। just pray for yourself and your family members. सिर्फ खुद के लिए और खुद के परिवार लोगों के लिए प्रार्थना मत करो, Pray for the believers in Church of Christ. लेकिन कलीसिया के लिए और सारे विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करो। God is very pleased with that. तो परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न होता Because है, Jesus is the head of that family. क्योंकि प्रभु यीशु उस परिवार का अगुवा है। We know that in the world they are very close to their own family and community. हम लोग जानते हैं कि कैसे दुनिया में लोग अपने जात के अपने परिवार के लोगों से बहुत ही नजदीक होते They हैं। go out of the way to help them. वो लोग बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। I remember when I was in Bombay Central Station, I was coming on the train. मुझे याद है जब मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन में था, मैं ट्रेन से आया था, There was a man who had fallen down, तो एक व्यक्ति था जो स्टेशन पे बेहोश पड़ा था, and the people were crowded, and the TC was there. और वहाँ पे काफी भीड़ जमा हो गई थी और टीसी भी था। Suddenly, one young boy came there. तो एक लड़का उधर आया, He was asking the TC, "ये मारवाड़ी है क्या? मारवाड़ी है?" तो वो लड़का के पूछने लगा टीसी से, क्या ये मारवाड़ी है? Because if he is a Marwadi, he is going to help him. तो क्योंकि अगर ये मारवाड़ी होता तो उसकी मदद Marwadis have to करता, help Marwadis. क्योंकि मारवाड़ी सिर्फ मारवाड़ियों की मदद करते हैं। But the TC said, "ये तो क्या इंसान है भाई? तू क्या मारवाड़ी पूछता है?" तो वो टीसी ने फिर बोला कि ये तो इंसान है, क्या तुम मारवाड़ी पूछ रहे हो? So then I just started thinking of that. तो मैं फिर उसके बारे में सोचने लगा What a great affinity he had for his own community. कि वो व्यक्ति के अंदर कितनी एक क्या प्रेम था वो व्यक्ति के अंदर खुद के जात के लोगों की ओर। That same love we should have for one another. तो वही प्रेम हमें एक दूसरे की ओर रखना है। Jesus said, "You must love one another as I have loved you." प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें उसी रीति से एक दूसरे से प्रेम करना है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। Don't keep on criticizing and backbiting and gossiping about one another. हमेशा पीठ पीछे लोगों की बात मत करो, उनकी कमियां मत निकालो। You will never backbite and gossip about a person whom you love. तुम कभी भी कोई ऐसे व्यक्ति के पीठ पीछे या उसके बात नहीं करोगे जिससे तुम प्रेम करते हो। Do you ever, brothers, do you ever gossip about your own children and backbite against them? क्या तुम कभी भी अपने बच्चों के बारे में पीठ पीछे बात करते हो या गपशप करते हो? Many of the believers you will keep on backbiting, but of their loved ones we will never do that. हो सकता है कि विश्वासियों के बारे में तुम गपशप करो, उनके पीठ पीछे बोलो, लेकिन अपने जो प्रिय लोग हैं उनसे तुम ऐसे नहीं करोगे। If you hear bad things, also will defend them. हो सकता है कि तुम उनके बारे में गलत चीज सुनो, फिर भी तुम उनके पक्ष में बात करोगे। But here also the believers keep on just busy backbiting and gossiping. लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि कैसे विश्वासी दूसरे विश्वासियों के पीठ पीछे बात करते रहते हैं, शिकायत करते हैं, गपशप करते हैं। They don't like this, they keep on talking all evil. अगर उन्हें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उनके पीछे फिर बात करते ही जाएंगे। This what we used to do in the past. ये हम लोग करते थे हमारे बीते दिनों Bible में। says you clean your. God says just go about doing good, do good and encourage and pray for one another. परमेश्वर कहते हैं कि तुम बस अच्छा करते जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाओ। I heard a good incident once. मैंने एक अच्छी घटना सुनी थी एक Then समय। we think all negative thoughts about different things. कई बार हम लोग हमेशा गलत चीज ही सोचते रहते हैं। Bad thoughts the devil puts into our minds. गलत सोच विचार हमारे दिमाग में शैतान डालते रहता है। And that is who's the devil always put bad thoughts. तो ये शैतान है जो डालता है ऐसे सोच विचार, And then we keep on thinking about it. और फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। Their brothers like that,
this is like that, my wife is like this. All bad things we keep on thinking about. कि ये भाई ऐसा है, मेरी पत्नी या मेरे पति ऐसा है, यही सब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं. Then it will burst into our minds. तो ये चीज हमारे दिमाग में चलता रहता है. The devil is throwing a grenade into our minds. तो ये एक बम के समान है जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है. What we should do? हमें क्या करना है? Throw it back. तो बम को हमें वापस फेंकना है. He said, okay, now you reminded bad things. I'm going to pray for that person. अभी तुमने मुझे वो व्यक्ति के बारे में सब गलत सोच विचार मेरे दिमाग में डाला है. मैं अभी वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा. I'm going to pray that person will be a godly person who will really get victory and who will worship and praise God and live for the glory of God. मैं प्रार्थना करूंगा कि वो व्यक्ति अच्छा धार्मिक व्यक्ति बन जाए और परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए जिए. The devil said, "Arey, every time telling bad things about him, he's going to pray about that person." फिर शैतान सोचेगा कि ये व्यक्ति को मैं उसके बारे में गलत सोच विचार डाल रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है. This fellow is a very dangerous person. He is always going to pray, and now I better not tell him all these bad things, otherwise he'll get reminded to pray for that तो person. ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है. तो बेहतर है कि मैं इसको गलत चीजें याद नहीं दिलाऊं, वरना वो उसके लिए और प्रार्थना करने लगेगा. God has called us to bind the forces of darkness. तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोग अंधकार के जो ये है आत्माएं हैं उनको बांधे. You and I are called to overcome the devil. हाँ, तुम्हें और मैं और तुम बुलाए गए हैं कि हम लोग शैतान के ऊपर जय पाएं. We be very weak, but we are strong in Christ. हो सकता है कि हम लोग बहुत ही निर्बल हो, लेकिन प्रभु यीशु में हम लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं. The devil has defeated us so much time, he has oppressed us, but now we can oppress the devil. एक समय ऐसा था कि शैतान हमें परेशान करता था, लेकिन अभी हम लोग शैतान को परेशान कर सकते हैं. And that is the victory that we have called to brothers and sisters. और यही वो जय वाला जीवन है जिसकी ओर हम बुलाए गए हैं भाई और बहनों. God can free, the Lord Jesus can free us, and that He can free other people. प्रभु यीशु हमें छुड़ा सकता है और हम लोग फिर दूसरों को छुड़ा सकते हैं. That is the importance of the anointing of the Holy Spirit. तो यही महत्वपूर्णता है पवित्र आत्मा के अभिषेक का. It will definitely change our lives. वो जरूर हमें बदलेगा. It will definitely change the way we behave in the office. वो जरूर हमें बदलेगा. हम लोग के बर्ताव को बदलेगा दफ्तर में. Change the way we behave at home. घर में हमारे बर्ताव को बदलेगा. Our atmosphere will change. जो वातावरण है वो ही बदल जाएगा. It's just like having Jesus at home. ऐसा लगेगा जैसे प्रभु यीशु स्वयं घर में है. Our life will change, the atmosphere will change. हमारा जीवन बदलेगा तो वातावरण भी बदलेगा. Because we have changed. क्योंकि हम लोग बदल चुके The Holy हैं. Spirit has changed me. और पवित्र आत्मा ने मुझे बदला Praise है. God. God has got a wonderful calling for each one of us, brothers and sisters. परमेश्वर के पास ये बहुत ही बेहतरीन बुलावा है हम सभी के लिए. It's high time for us not to just listen and be quiet about it, but to stand there and have the living faith in God. अभी समय आ गया है कि हम लोग बस चुप नहीं बैठे, लेकिन हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और ये जीवन प्राप्त करें. Amen. आमीन.